Rahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is locomotion in fish and amphibian. Topic 24, Chapter 16, Sport and Movement. Now first we start or discuss how fish locomote or move in the water. First of all, we will discuss its adaptations. Fish has following adaptations: mean streamlined body, having mucus and oil glands on skin, and tempering ends, and presence of swim bladder and fins. This word is fins, not fish. So we will discuss all these adaptations one by one. First of all, fish has streamlined body, mean its ends or its body is tempered from both ends. Tempered का मतलब होता है पॉइंटेड और नोकीला. So, due to the tempering body, it faces very low resistance from water, and it make its movement in the water much easier. So, first adaptation is streamlined body, mean tempering body, pointed ends to reduce the friction or to reduce the resistance faced by the water. Second adaptation is presence of mucus and oil glands. Fish, the skin of fish have mucus plus oil glands. These mucus and oil glands secrete slimy material, and this slimy material helps in the reduction of friction. This slimy material helps in the reduction of friction between the body and water, so it can move easily in the water. And some fishes have small scale like denticles. These small scale like denticles, फिफ्थ एडेप्टेशन हम लिख लेते हैं जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं. स्मॉल स्केल लाइक डेंटिकल्स. These small scale like denticles also help fish in the reduction of friction or in its movement in the water. Third adaptation is fins. Fins का मतलब है outgrowth और any थिन अपेंडिज, कोई भी बारीक सी अपेंडिज जो बॉडी से बाहर प्रोजेक्टेड हो उसे हम क्या कहेंगे? फिन्स. सो फिश हैज 4 टाइप्स ऑफ फिन्स. दैट इज डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन एंड caudal fin. 5 types of fins. The dorsal and ventral are unpaired fins. Dorsal and ventral are unpaired fins. Both these fins are unpaired. Single ventral fin and single dorsal fin.
Second type of pectoral and pelvic fins. These pectoral and pelvic fins are paired fins. ये जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा दो के पेयर में प्रेजेंट होंगे. मीन कि फिश के बोथ साइड पे पेक्टोरल फिन प्रेजेंट है, फिश के बोथ साइड पे पेल्विक फिन प्रेजेंट है. एंड वेंट्रल एंड डोर्सल फिन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ए अनपेयर्ड फॉर्म. मीन कि सिंगल डोर्सल फिन हमेशा प्रेजेंट होगा और सिंगल ही वेंट्रल फिन. फिफ्थ वन इज कॉर्डल फिन, और इसे टेल फिन भी कहते हैं. एंड कॉर्डल फिन इज आल्सो अनपेयर्ड फिन. कॉर्डल फिन भी क्या होता है, हमेशा अनपेयर्ड होता है. सो नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ ईच फिन वन बाय वन. फर्स्ट वी विल डिस्कस dorsal and ventral unpaired fins. The function of dorsal and ventral unpaired fin is to stabilize the fish in the water. Stabilize the fish in the water during movement or swimming. जब फिश मूव कर रही होती है वाटर के अंदर, ये जो डोर्सल अपर फिन और वेंट्रल लोअर फिन है, ये फिश को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं वाटर के अंदर, और इसे मूवमेंट में क्या करते हैं, बैलेंस करने में हेल्प करते हैं. सेकंड वन इज पेक्टोरल एंड पेल्विक. इसे आप एंटीरियर और पेस्टीरियर विंग भी कह सकते हैं, फिन सॉरी. एंटीरियर फिन इज पेक्टोरल फिन, और पोस्टीरियर फिन पीछे वाला जो फिन है, लेटरल फिन भी कह सकते हैं, दिस इज पेल्विक फिन. एंड दीज फिन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म. एंड द फंक्शन ऑफ दीज फिन्स, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन, इज स्टीयरिंग एंड बैलेंसिंग. स्टीयरिंग प्लस बैलेंसिंग in the water. स्टीयरिंग का मतलब होता है, दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फिश. फिश जो वाटर के अंदर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और अपने आप को वाटर के अंदर बरकरार रखती है, बैलेंस करती है, तवाज़ुन बरकरार रखती है, ये दोनों किसके फंक्शन है, पेल्विक और पेक्टोरल के. स्टीयरिंग मीन चेंजिंग ऑफ मूवमेंट, चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन. बैलेंसिंग मीन स्टेबलाइजेशन, अगेन सेम मीनिंग. फिफ्थ फिन इज कॉर्डल फिन. द फंक्शन ऑफ कॉर्डल फिन, जिसे हम टेल फिन भी कहते हैं, इट coordinate with paired fins and helps in the forward movement of the fish. जो caudal fin है, it helps both paired fins, mean pectoral fin and pelvic fin. It coordinate with both paired fins, coordinate with paired fins and help the fish in forward movement. और उसे आगे बढ़ने में क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में क्या करती है, हेल्प करती है. स्टेबलाइजेशन किसका फंक्शन है, डोर्सल और वेंट्रल फिन का. स्टीयरिंग एंड बैलेंसिंग किसका फंक्शन है, पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन का. कोऑर्डिनेशन किसका फंक्शन है, कॉर्डल फिन का, जिसे हमने दूसरा नाम क्या दिया है, टेल फिन. सो दिस इज ऑल अबाउट लोकोमोशन ऑफ फिश इन वाटर
in which we discussed 5 adaptations, and these 5 adaptations are streamlined body, presence of mucus and oil glands on skin, presence of fins, presence of swim bladder, and presence of denticle. Swim bladder, the one adaptation I missed. Swim bladder helps the fish in upward and downward movement in the water. जो up and down movement है mean buoyancy, this movement is achieved by the swim bladder. इस movement को हम क्या कहते हैं? buoyancy, and this movement is achieved by the swim bladder. वाटर की फिलिंग और एलिमिनेशन से जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है फिश के अंदर, दिस मूवमेंट इज अचीव्ड बाय द स्विम ब्लैडर. सो दिस इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ फिश इन द वाटर. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड मूवमेंट, दैट इज द मूवमेंट ऑफ एम्फीबियंस. Amphibians have total 2 types of movement, that is wriggling movement and swimming movement. Amphibians are those organisms which live on dry land and also on wetland, mean water. अगर इसकी 2 हैबिटेट्स हैं तो ऑब्वियसली इसके जो मोड ऑफ लोकोमोशन है वो भी 2 होंगे, दैट इज वॉकिंग एंड स्विमिंग. वॉकिंग ऑन लैंड, स्विमिंग इन वाटर. वन स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट दैट एग्जिस्ट इन एम्फीबियन इज wriggling movement. The literal meaning of wriggling movement is swimming on land. मीन कि जब जानवर मूव कर रहा हो ड्राई लैंड के ऊपर, बट इन अ वे लाइक इन अ स्विमिंग मैनर. इट कैन बी easily observed in crocodile when it comes near to water body. It just lift his appendages and start floating on land, और ये स्विम करता हुआ, स्लिप करता हुआ किसके अंदर जाता है? वाटर के अंदर. ये जो स्लिपरी मूवमेंट है एम्फीबियंस की ड्राई सरफेस के ऊपर, इसे हम क्या कहेंगे? रिगलिंग मूवमेंट्स. यानी कि जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म स्विफ्टली, तेज़ी से, विद वेरी लो फ्रिक्शन लैंड के ऊपर मूव कर रहा होता है. एक्सटेंसर थ्रेड्स पाया जाता है ऑरेंज में. ऑरेंज जीनस है. कौन सी जीनस? वो वाली जीनस जिससे बिलोंग करते हैं फ्रॉग्स और टोड्स. तो ऑरेंज जो ग्रुप है जानवरों का, ये एक्सटेंसर थ्रेड्स को यूज़ करते हैं. मीन जंपिंग और होपिंग कहते हैं उछलना. होपिंग के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मूव करते हैं. और ये मूवमेंट ओनली एंड ओनली अचीव की जाती है विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल स्केलेटन. सो दिस इज ऑल अबाउट locomotion in amphibians, in which we discuss their habitats, their mode of locomotion, then wriggling movement which is swimming on land, and extensor thrusts जिसके अंदर जंपिंग करते ड्यू टू द मस्कुलर और फ्लेक्सिबल स्केलेटन, एंड इट कैन बी ऑब्जर्व इन
orange, that is frozen toads. So this is all about your today's lecture.